Hey everyone, welcome to my YouTube channel and today's our new topic is fundamental rights of Indian Constitution. So do watch this video and let me know how it is in the comment box. Thanks for watching. Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the topic six major or main fundamental rights which are there in the Constitution of India. Let's see what are the main six fundamental rights in Indian Constitution. First one is right to equality. We will be seeing this all in detail in the later part. First, I will list out the six fundamental rights over here. First one is right to equality. Second one is right to freedom. Third one is right against exploitation. Fourth one is right to freedom of religion. Fifth one is cultural and educational right. And last one is right to constitutional remedies. Okay, let's move on for a deep detailed study about each fundamental rights. See, you should know that our Indian Constitution is fully depend on this main six fundamental rights mainly, because this six fundamental rights comprises of a maximum part of the Constitution. Let's move and see what right to equality speaks. Okay, so here if we will see that the title itself says that right to equality, and right to equality means before equality before law, equal protection of law. Okay, if the government is making any law, ओके, इट डजेंट मीन दैट वो सिर्फ एक पर्सन के लिए लॉ है या दो पर्सन के लिए है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है. नहीं, वो जो लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट में या जो भी डिपार्टमेंट्स में, वो सबके लिए इक्वल होगा. ओके, सो दैट इज़ लाइक समथिंग इक्वालिटी. And it also states in the right of equality, it also states that prohibition of discrimination, okay, on ground of anything, religion, race, caste, sex, place of birth, anything. आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल, like if you are not liking anyone's religion, you cannot discriminate that person or that group of people. Okay, similarly, on the basis of race, you cannot discriminate anyone. Like for example, black and white, you cannot discriminate between them. Even if you take the sex option, like it male female, you cannot discriminate on the basis of this also. Like for example, if you will discriminate to the female, it means that you're not giving the right to equality. Even she is also the citizen of the India, उसे भी उतना ही हक है. Okay, so this all fundamental right is meant for everyone, whether it is of upper caste, lower caste, rich, poor, each and everyone. This fundamental right is common for each and everyone, whether that person is prime minister, president, or chief minister of the state, or any MLA, anyone. For the every citizen of the India, this right to equality is valid. Now, there should be equal access to shops, hotels, wells, tanks. Okay, for example, it is said like that there should be equal access for the public facility. अगर वो public property है तो वहाँ पे कोई भी restrictions नहीं होगा कि सिर्फ limited लोग ही जा सकते हैं या सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बना हुआ है. अगर वो public facility है तो वो हर किसी के लिए बना हुआ है. अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की तो वो स्पेसिफिक पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उसमें हमारा कुछ हक नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर रोड है, पब्लिक रोड है, गवर्नमेंट रोड है, और फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, फॉर एग्जांपल बस स्टैंड है, तो ये सारी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है. सो इसमें ईच एंड एवरी डिसरिगार्डिंग द level, disregarding the richness and poorness, disregarding of the race, disregarding of the sex. ओके, सो हियर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमें हर एक सिटीज़न को दिया है. नाउ
then it is also stated that equality of opportunity in public employment. Okay, first of all, you should know that equality of opportunity means that all the section of the society it should enjoy the equal opportunities. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उनको ही सब बेनिफिट मिला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी फेयर मिलनी चाहिए. ओके, अगर आप देखोगे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या एडमिशन्स में या बड़े बड़े कॉलेजेस में कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं. ओके, कुछ सीट्स रिज़र्व होती हैं. उसका मेन रीज़न ये है कि जो सीट्स रिज़र्व होती है वो बैकवर्ड कास्ट पीपल्स के रिज़र्व होती है, लाइक ST, OBC, SC. ओके, दिस इज़ वाई बिकॉज ये जो ST OBC कम्युनिटी है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं. ओके, एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप टू ब्रिंग देम अप. उनको भी एक लेवल में लाना है, तो इसीलिए government after independence started giving the reservation in various sectors, in job, in admission, or in like various platform of the public employment. They started giving the reservation to the backward caste people so that they can also come to the level as a normal people. Then abolition of untouchability. You should know that this untouchability is one of the crudest manifestation of inequality. ये सबसे ख़राब तरीका होता है किसी की डिग्निटी को हर्ट करना, किसी के फीलिंग को हर्ट करना. ओके, बिकॉज अगर लाइक अनटचेबिलिटी इन द सेंस लाइक अगर आपके सामने वाला जो पर्सन है आप उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, इट मीन दैट कि आप फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर आपको एक गिलास पानी दिया तो आप उनके हाथ से आप पानी नहीं पियोगे. या सपोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है तो आप उनको एज ए एम्प्लॉयर नहीं रिक्रूट करोगे या उनसे काम नहीं करवाओगे, वहाँ पे उनको तुम जॉब नहीं दोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी स्कूल इज़ प्रैक्टिसिंग, none of the school practices this, but I'm taking the example. For example, some of the school is practicing after coming this all law, this all system has been reduced, but later on जब ये law सब नहीं बना था, ये सारे untouchability के practices होते थे. even schools में होते थे, working places पे होता था, society में होता था, बहुत काफ़ी जगह होता था. ओके, even अभी भी काफ़ी कंट्री के काफ़ी कॉर्नर्स में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है. ओके, एंड अगर आप रिपोर्ट करते हो इसे as a case, then it becomes a crime for that person. Okay, so if I will give the example, like for example if it is school and अगर स्कूल में वो बच्चा जाता है और फिर बाकी सारे टीचर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर वो अनटचेबिलिटी वाला बिहेव करते हैं कि नहीं, यू विल नॉट सिट ऑन दिस बेंच, जस्ट सिट डाउन, और डोंट कम इन क्लास, जस्ट स्टैंड आउटसाइड एंड अटेंड द लेक्चर्स. व्हाट इट मीन दैट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तुम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो. सो इट इज़ लाइक लिटरली इट इज़ अनफेयर फॉर दैम. Okay, so it is not included. Untouchability is one of the crime because each and every person have the equal right to survive in the society and to have the equal access of all the facility which government gives. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इन द सेंस आप किसी पर्सन को लाइक ग्रेट नहीं घोषित कर दोगे या बहुत ये किंग है, ये एरिया का किंग है या ये एरिया का डॉन है, ऐसा नहीं करना है. ओके, बिकॉज यहाँ पे हर एक पीपल को इक्वल राइट है. यहाँ पे कोई किंग नहीं है, यहाँ पे किसी का किंगडम नहीं चल रहा है. ओके, सो इट मीन दैट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. किसी के पास कोई टाइटल नहीं है कि यू आर द हेड ऑफ दिस एरिया, यू आर द हेड ऑफ दैट, until you're the member of any of the Panchayati Raj system or any MLA or the even MLAs जो होते हैं, they don't have the name of like तुम यहाँ के king हो. Okay, so like it comes under the abolition of the title. Let's move to the other right, that is right to freedom. Right to freedom means like it is giving a wide range of freedom to you. For example, if I'm speaking to you, इट मीन दैट आई एम हैविंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच. मुझे किसी ने रोका नहीं है बोलने के लिए. एंड इफ़ आई एम टीचिंग यू,
through the social media or the online content, it means that I'm having that much freedom. No, I'm expressing myself. मुझे जो knowledge है मैं तुम्हें express करके बता रही हूँ. Here it means that मुझे कोई रोक रहा नहीं है. और फिर हमारे कंट्री में ये ऐसा राइट है कि राइट टू फ्रीडम है हर किसी को. हर कोई स्पीच कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, असेंबली पीसफुल कंडक्ट कर सकता है. बट ये है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इट शुड फॉलो द गुड एथिक्स, गुड मॉरल. ओके, आई शुड नॉट हार्म एनी वंस फीलिंग. Okay, here I should not propagate anyone's feeling, or I should not propagate anyone's agenda, because we are living in the democratic country. And if the democratic country is giving so much rights and so much facility, it's our role as a citizen to respect all those rights and all those facility which government is providing us. Okay, so we see that we are getting the freedom of speech and expression. Assembly peaceful in the sense आप ग्रुप बना सकते हो कितने भी पीपल्स का, आप कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बट वो सारे पीसफुली होने चाहिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होनी चाहिए उस चीज़ में. यू कैन फॉर्म द एसोसिएशन, यूनियंस. ओके, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. येस, कभी ऐसा सुना है कि तुम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र से आप गुजरात नहीं जा सकते हो? ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे इंडिया में हर एक स्टेट एंड हर एक टेरिटरी को परमिशन दिया गया है कि वो कोई भी टेरिटरी में घूम सकते हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन. ओके, उनको ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक दिन पहले परमिशन लेना है कि तुम्हें पंजाब जाना है, यूपी जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनीवेयर. रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया. रिसाइड एंड सेटल, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, वहाँ पे फ्लैट लेना है आपको, आप वहाँ जाके लेके रह सकते हो, आपको कोई भी रुकावट नहीं है. ओके, बट यू शुड नो दैट हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लैंड पे सिर्फ जम्मू कश्मीर पीपल्स का हक है. वहाँ पे अगर हम लाइक अदर स्टेट वाले जाते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्रियंस, गुजरातीज, केरला या जो भी है वेरियस अदर देन द जम्मू कश्मीर के कोई भी स्टेट वाले पीपल वहाँ जाते हैं, तो उनको हक नहीं है कि वहाँ के लैंड पे वो बिल्ड कर सके या सेटअप कर सके या वहाँ पे फ्लैट लेके रह सके. ओके, सो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड. And we are having the right to practice any profession. Okay, and carry on any profession. Doesn't mean that my father is doctor, so I have to be a doctor. If my father is cobbler, I have to be a cobbler. If my father is carpenter, I have to be carpenter. No, this all methods was outdated. अब बहुत ज़्यादा changes आ चुका है. ओके, सो हमारा अब हमें जो भी प्रोफेशन अच्छा लगता है हम वो होल्ड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस. ओके, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दिया गया है तो आप फ्रीडम में कुछ भी करोगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सामने वाले का फ्रीडम भी आपको हार्म नहीं हो, आप हार्म नहीं करोगे. ओके, फ्रीडम दिया है, इट मीन दैट आप किसी के घर में भी जाके, इट्स नॉट दैट इट इज़ नॉट दैट फ्रीडम कि यू विल गो एनी वेयर, यू विल roam anywhere, you will speak anywhere. If you're having the right to speech and expression, it doesn't mean that you will say bad words to society, or you will do the bad speech to the society. No, you don't have that right. Okay, so this all rights should be used in a free and fair manners. Then right to life, personal liberty. Yes, हर किसी को जीने का हक है, personal liberty है. Then right to education. Yes, right to education. यहाँ पे up to 14 year of age a child can get the free education from the government side. ओके, 14 साल तक के बच्चे को गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है. Okay, so here your right to education is covered. In the later part you will get one more right, one more cultural and educational right. In
that cultural and educational right is quite different from right to education. Okay, I will differentiate what's the difference between in these 2 points. Okay, so keep in mind that right to freedom के अंदर आपको right to education है, जिसमें हमें 14 years के बच्चे तक का गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन देती है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ओके, अब यहाँ पे क्या है, कोई भी पुलिस आपको बिना बताए अरेस्ट नहीं कर सकती है. ओके, प्रोटेक्शन होना चाहिए. अगर आपको अरेस्ट वो करने आते हैं तो वो तुम्हें डिटेल्स बताना चाहिए कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट रॉन्ग डीड यू हैव डन. ओके, आपने क्या किया है, अब आपको अरेस्ट करने की वजह क्या है. ओके, सो यहाँ पे तुम्हें भी राइट है, तुम्हें फ्रीडम है. ओके, एंड द पुलिस इज नॉट हैविंग दैट फ्रीडम कि वो किसी को भी अरेस्ट कर लें. यू गेटिंग. सो अगर कोई अरेस्ट करने आता है तो सामने वाले पुलिस का ये हक होता है कि तुम्हें वो डिटेल्स बताए कि तुमने रॉन्ग डीड क्या किया है, तुम्हें अरेस्ट करने की वजह क्या है. लेट्स मूव टू द अदर right against exploitation. Right against exploitation. See, this one is like very, during the British era, when India was under the Britishers, we have faced a lot about the exploitations. हमें slave बना के रखा गया था और हमसे काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता था और उसका जो पे किया जाता था वो काफ़ी लेस होता था. ओके, सो ये भी अबॉलिश कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे हर किसी को राइट है कि जितना जो काम कर रहा है उतने उसके इक्वल में उनको वेजेस मिलना चाहिए और दे आर हैविंग द राइट टू फ्रीडम ऑल्सो. ओके, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी को एक्सप्लॉयटेशन होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, fine. So like if you will see that in our country there are millions of people who are underprivileged and deprived. Okay, and even they are like underprivileged है, deprived है, poor है, conditions खराब है. तो so like this type of people are more subjected to exploitation by the fellow human beings. अगर किसी इंसान को पता चल जाता है कि ओके ये पुअर है, ये पुअर गर्ल है, ये पुअर फैमिली है, तो उन फैमिली को वो दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट. वो ऐसा बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, तुम ये काम करो, हम तुम्हें आपको खाना देंगे, आपको पैसे देंगे. बट होता क्या है, वो जाते तो हैं वहाँ पे काम करने, बट वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको फूड नहीं मिलता, उसके हिसाब से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उसके हिसाब से उनको वेजेस नहीं मिलते. ओके, सो इफ़ अगर ऐसा होता है, आप जितना काम कर रहे हो आपको वेजेस नहीं मिल रहा है, उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. जहाँ पे तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हें उस तरीके का पे भी नहीं किया जाता और रिस्पेक्ट भी नहीं किया जाता, तो वहाँ पे दैट थिंग इज़ कॉल्ड द एक्सप्लॉयटेशन. Okay, did you heard of the trafficking, human trafficking? It means that buying and selling of human beings and using them for as a slaves. Okay, ह्यूमन बीइंग को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है और उनको स्लेव बना के वहाँ पे वर्क कराया जाता है. ओके, दैट वर्क माइट बी एनीथिंग, या तो बेकर का काम हो सकता है, फोर्स लेबर का काम हो सकता है. अगर आपको किसी ने सेल कर दिया, किडनैपिंग एंड ऑल दिस ऑल आर द ट्रैफिकिंग, जहाँ पे किडनैप करके बच्चों को या एडल्ट ह्यूमन बीइंग को किडनैप करके लेके जाया जाता है एंड उनसे काम करवाया जाता है. Getting. So so this is all thing is like prohibited in our India by our constitution, because our fundamental right, it is giving the right against the exploitation. Even employment of the children in hazardous jobs or hazardous industry like mining industry or any chemical industry में हमें under 14 एज के बच्चे को काम नहीं करना है. हमारे इंडिया में ये रूल है. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज दैट एज इज ऑफ स्टडी एज और द इंजॉयमेंट एज. सो लाइक नो चाइल्ड शुड लाइक मिस दैट चाइल्डहुड. ओके, हर किसी को अपना बचपन जीने का हक है, हर किसी को अपना हर एक चीज़ें लाइफ में करने का हक है. तो बहुत सारी फैमिलीज़ होती है जिनको लाइक फूड नहीं होता है या बहुत पुअर होते हैं. दे जस्ट से देयर चाइल्ड टू गो फॉर द वर्क एंड लाइक वो काम करवाते हैं.
बट अगर गवर्नमेंट तुम्हें फैसिलिटी दे रही है कि आप 14 साल तक फ्री पढ़ सकते हो, तो आप 14 साल तक फ्री पढ़ सकते हो, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। ओके, एंड लाइक स्पेशली जो डेंजरस फैक्ट्रीज होती है केमिकल्स की, माइनिंग फार्म्स एंड ऑल, वहाँ पे तो चिल्ड्रंस को नहीं जाना चाहिए जॉब करने। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम, सी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एंड इंडिया और आवर कंट्री इज़ अ होम टू सेवरल रिलीजन्स। ओके, हमारी कंट्री एक होम है सेवरल रिलीजन्स का, और यहाँ पे हर किसी को हक है कि वो कोई भी रिलीजन चूज़ कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज मुस्लिम हूँ एंड इफ़ आई वॉन्ट दैट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई सेल्फ इन द मुस्लिम, क्रिश्चियन, Jain, anyone, any caste, okay, I can convert, any religion I can convert, okay, because this freedom is given by our Indian Constitution. ओके, एंड यू नो आप अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक प्रैक्टिस इट मीन दैट आप अगर हिंदू हो तो आप जो पूजा करते हो दैट इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिस। अगर आप मुस्लिम हो, आप कुरान पढ़ रहे हो और या नमाज़ पढ़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिसिंग। ओके, तो आप वो चीज़ें सब कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया में किसी को मना नहीं है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। Okay, and you can manage all the religion affairs, even you pay taxes for the promotion of any particular religious, and to attend religious instructions or the worship in certain, you know, पूजा आरती होती है या बहुत सारे ऐसे थिंग्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, प्रैक्टिसेस हैं, वर्शिप्स के मेथड्स हैं, एंड यू नो रिलीजियस आर हैविंग देयर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे सिर्फ वही रिलीजन्स की पढ़ाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक, दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यस, हमने इससे पहले देखा था राइट टू इक्वालिटी में राइट टू एजुकेशन। ओके, उसमें भी एजुकेशन था, और उसमें हमने ये देखा था कि 14 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं, अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बट यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल राइट ये डिफरेंट वाला राइट है। हमारे जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, ओके, उस कल्चर में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ओके, different languages मतलब like for example a tribal people are having the tribal language, like आदिवासी language है या सिंधी language है या different, there are lots of tribal people who are having the various बहुत different kinds of उनके पास languages available है, उनकी culture available है, वो रहते कैसे है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो food क्या खाते हैं, that all thing is their culture. Okay, so here government is giving the right to preserve that all culture and preserve their all languages of the minority. Okay, बिकॉज मेजॉरिटी में है तो डेफिनेटली अगर मैक्सिमम लोग उससे फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रिजर्व रहेगा ही, बट जो माइनॉरिटी जब फॉलो करती है तो डे बाय डे वो डिक्रीज होते जाता है सब कुछ। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ये दिया है राइट कि आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये देता है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हो, आप अपने कल्चर को प्रोपोगेट कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। ओके, बाय एस्टेब्लाइजिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटीज़ रन करेंगे अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, सो इट इज़ दैट। तो ये वाला जो एजुकेशनल राइट है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द राइट टू एजुकेशन। लेट्स मूव to the last fundamental right, which is I can say that it is a whole and soul of all the fundamental rights which is given by the Constitution of India, because this right name itself says that right to constitutional remedies, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो, अभी तक हमने जो इतने भी फंडामेंटल राइट्स देखे वो सिर्फ अगर सिर्फ पेज में लिखा हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। इतने इम्प्रेसिव तरीके से उसे एक्सप्लेन किया गया है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, जब तक हमारे पास कुछ ऐसा राइट नहीं आता है कि हम उसे प्रैक्टिस कर सके, वो जितने भी राइट्स है या वो राइट को डिफेंड कर सके, अगर कहीं वायलेशन होता है तो, या कहीं उस राइट पे अटैक होता है तो हम उस चीज़ को डिफेंड कैसे करें। डिफेंड इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा अंडर 14 है, 13 ईयर का एज है या 12 ईयर का एज है और वो वर्क कर रहा है कोई इंडस्ट्री में,
okay. And if I am coming to know and I will say no, we have the right that for it is written in the constitution that under 14 के बच्चे वर्क नहीं कर सकते हैं, ओके तो ये मैं कहाँ केस लेके जाऊँगी, टू होम आई विल से दिस, ओके अगर आई एम हैविंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर मुझे कोई रोक रहा है कि तुम बोल नहीं सकते हो, तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो खुद को पब्लिक में, देन हु आर यू टू स्टॉप मी, ओके सो हियर इट मीन दैट अगर सामने वाला आपको रोकता है, आपको फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है आपकी सोसाइटी में, अगर आपको उसे बताना है किसी को, तो आप जाओगे कहाँ पे, सो दिस राइट इज गिविंग यू द प्लेटफॉर्म to reach or to approach the High Court and Supreme Court with your case. अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है या तो कोई ग्रुप ऑफ सोसाइटी का वायलेट हो रहा है, तो भी आप उनका केस कहाँ लेके जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो, ओके रिगार्डिंग एनी फंडामेंटल राइट. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल कहा है, बिकॉज अगर यही राइट नहीं है तो जो बाकी जो मेंशन राइट है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके मेंशन राइट सिर्फ पेपर पे ही रह जाएगी जब तक ये राइट एक्शन में नहीं आएगी. इसका मतलब ये होता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसकी रेमेडीज़ निकाली जाएगी. आपके पास हक है कि आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ या हनन हुआ है तो. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल एक्सप्लेनेशन, एंड इफ़ यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन एंड द वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी सजेशन, so drop down your suggestion in the comment box, and do like, subscribe my channel, and if you don't like the thing what I have done today, so you can dislike the thing, but अगर dislike कर रहे हो तो let me know why you have disliked, so that in the coming videos or in the next time I will improve my mistakes. Thank you so much. Hey, if you have liked this video, do subscribe, comment, share this video, and if you are doing the dislike to my video, just let me know in the comment box what's the reason to dislike my video, so that I will improve it.